breakfast? Nutritious breakfast? Good morning, parents. So I think we have given you a miniature of how the day is going to start for our kids. It will be with an assembly every day, like Shipra ma'am and Vinita ma'am told you. The policy is no child left behind. So almost every day around 10 to 15 children will be there for the assemblies. It means every child is going to get a chance. And you must have seen Vinita madam and Shipra madam comparing. And the comparing will also be done by the children only, not by the teachers. 2 children every day compare for the assembly, and likewise children are going to present the assembly, and every month we are going to have a theme and value. So the theme for this month is empowerment. That is the theme, and the value is women empowerment. That's how it's going to be. So every month there is some value and some theme, and the purpose behind enacting these things in the assembly is because we believe in making the children catch values. We can never teach values. हम values को पढ़ा नहीं सकते हैं. Values को हम क्या कर सकते हैं? बच्चों से imbibe करवा सकते हैं. और वो भी कैसे? We have to model values. जैसे मैंने बोल दिया बच्चे से, बेटा तुम honest रहना. तो बच्चा honest नहीं बन जाएगा until unless I model that behavior. So as parents, it is up to you also to model that behavior. And the school will make them practice it by making them perform in the assembly. जब बच्चा उस चीज को perform करेगा तो उस चीज को समझेगा कि मुझे लाइफ में ये चीजें, मतलब मेरे लिए लाइफ में चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं. So that's how we are going to start the day. और केजी का जो आपको सर्कल टाइम दिखाया, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. बच्चों को एक स्टेज फियर रहता है, इवन बड़ों को रहता है. आपको मालूम है ना, स्टेज में आकर 2 शब्द बोलना इतना आसान नहीं, राइट? मैं बहुत कुछ मतलब आपस में बोल सकता हूँ. I can talk to my friends when I'm having a personal conversation. पर वही चीज़ जब बोली जाए कि आगे आप स्टेज में बोलिए, 10 लोगों के सामने बोलिए, तो our knees start shivering. हमारे मुंह में जो है ऐसा लगता है कि ज़बान ही नहीं है. तो we want that our children should be able to shed that fear. और जब ये fear उनमें से shed हो जाता है, definitely उनकी हर academic skill improve होती है. Now I will take you through the presentation of our academic policy for the next, that is for this coming year 2023-24. कि हमारी academic policy क्या है? You should know what is our academic policy. And let me tell you parents, थोड़ा सा आप लोग concentrate करिए. और हमारा activity और academic calendar हम आपको WhatsApp में post भी करेंगे, ताकि आपको मालूम चलेगा कि कब कब बच्चों के periodic test होने वाले हैं और बच्चों के लिए क्या co-curricular activities हैं, जिससे कि बच्चों का holistic development हो. और इस बात को आप मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं कि until unless we develop the children holistically, it is of no use. मैं हमेशा आप लोगों को बोलती आई हूँ कि बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता बनाने से कोई फायदा नहीं है. The reason is the world is becoming competitive, and until unless your children become independent and self-learners, कोई फायदा नहीं है. कुछ किताब से कुछ क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ नहीं होने वाला है. They should be able to write on their own. They should be able to think for themselves. इसीलिए जो है पहले हम लोग 15 मार्च से लेकर, प्लीज लिसन टू द डेट केयरफुली, और आज ये मैसेज भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक बच्चों का फाउंडेशन ही चलेगा. It will be a complete foundation program where their language skills are going to improve, their research aptitude is going to improve, their analytical skills are going to improve, and their numeracy skills are going to improve. First of all, literacy and numeracy are 2 major things क्योंकि बच्चों में आ जाए उनके लिए हर सब्जेक्ट आसान हो जाता है. So we are giving a lot of emphasis on literacy and numeracy skills. For example, you know that कि जब तक बच्चा अपना आप से बोल नहीं पाए, अपने आप से कुछ लिख नहीं पाए, it's of no use. That's the reason where you will also get a structure of the foundation program also. हम आपको डॉक्यूमेंट करके भेजेंगे ताकि आपको भी मालूम चलेगा कि हर बच्चे को फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या अलग अलग चीजें करवाई जाएंगी. Where language is concerned, where maths is concerned, where science is concerned, and where social science is concerned. आपको day wise उसका एक documentation भी मिलेगा so that you also know मेरा बच्चा आज ये करने वाला है. Day 1 in English, this is what my child is going to do. Day 1 in science, this is what my child is going to do. Day 1 in English, this is what my child is going to do. इसका पूरा documentation आपको आएगा, and accordingly teachers will be training the children right from phonetic transcriptions to
अंडरस्टैंडिंग द स्पेलिंग्स, नॉट बाय हार्टिंग द स्पेलिंग्स। ये पुराना मेथड है जहाँ पर बच्चे स्पेलिंग्स को बाय हार्ट करते थे, and I think no school is doing that also. So we are going to teach the children scientific way of learning the spellings also, not by hearting, which you are going to see in our foundation program. Now parents, let me take you through our foundation program slides. Yes, start off. आप start करिए with the first slide. Start with the first slide. Who's there? Shweta, please start with the first slide. आप ये क्या करें? Start with the first slide. Now see foundation program. We are going to conduct foundation program for all our students with special emphasis on the 4 R's. 3 R's से 4 R's हैं: reading, writing, arithmetic and research aptitude. ये चारों चीजों पर फोकस करते हुए हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए रहेगा। ये 1 month long program, not to 13th March, from 15th of March till 7th of April. Change the date. The main objective, as the name suggests, is to work on basics. Foundation program किसके लिए है? बच्चों के बेसिक्स पर वर्क करने के लिए। Then it will also fill the learning gap. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका बच्चा ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जा रहा है और हम आपको ये बता दें आरटी के अंतर्गत वी डू नॉट डिटेन द स्टूडेंट्स। हम 8वीं क्लास तक बच्चों को डिटेन नहीं करते हैं, पर हमारे कुछ बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी भी नहीं है। व्हेन टीचर्स टॉक टू यू विल अंडरस्टैंड, पर भी हमने किसी बच्चे को रिटेन नहीं किया है किसी भी क्लास में। वी हैव प्रमोटेड ऑल आवर चिल्ड्रन बिकॉज वी बिलीव कि फाउंडेशन प्रोग्राम में वी आर वेरी मच we are very much sure about it. We are very confident कि फाउंडेशन प्रोग्राम में हम उस लर्निंग गैप को फिल कर देंगे। पेरेंट्स, आई वांट यू टू कंसंट्रेट प्लीज। पर एक रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर देखा है, व्हाट आई एम सीइंग द ट्रेंड ओवर हियर इज बच्चे एब्सेंट। 2 दिन आए, 3rd डे एब्सेंट। हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो बच्चा एब्सेंट रहता ही है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये बात तो समझ लेनी है, until and unless there is punctuality, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में होगी ही नहीं। आप जितने भी बाहर के टीचर लगवा लीजिए, आप जितना भी खुद घर में पढ़ा लीजिए, इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हमारा पढ़ाने का मेथड कुछ अलग, और आप जब किसी ट्यूशन टीचर या खुद पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वो एग्जाम में कर भी नहीं पाता है। और मैंने आपको दोबारा बोला, हमारा मेथड सिर्फ बच्चों को पीछे के क्वेश्चन आंसर रटवाना नहीं होगा। बच्चों को केस स्टडीज रहेंगी, OTPs रहेंगे, एनालिटिकल पैसेजेस रहेंगे, पैटर्न राइटिंग रहेगा, कोडर स्टाइल ऑफ राइटिंग रहेगा, हैमबर्गर राइटिंग रहेगा। तो ये आप लोग तो जानते ही नहीं है। एनी पेरेंट हु नोज व्हाट इज हैमबर्गर राइटिंग? एनी पेरेंट हु नोज व्हाट इज कोडर राइटिंग? एनी पेरेंट हु नोज व्हाट इज पैटर्न राइटिंग? तो ये सारी चीजें बच्चों को हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि उनकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, एनी टाइम, मैंने आप लोगों ने सबने पॉलिसीज पढ़ भी ली है, नॉर्मल वर्किंग डेज में तो बच्चों को एब्सेंट करवाइए ही नहीं, until unless it is a emergency medical reason। बच्चा बहुत बीमार है, ठीक है, we can understand, पर मुझे शादी में जाना है, मेरे घर वाले सब शादी में चले गए, नहीं, अपने रिलेटिव से भी बोलिए कि जब शादी आप हो तो आप वेकेशन पे करवाइए। एंड इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अपने बच्चों के एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर आप शादी ब्याह में या अपने फैमिली फंक्शन में चले जाएं। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज चाइल्ड्स फ्यूचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग पेरेंट्स, देयर इज नो प्लेस फॉर मीडियोक्रिटी इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। हमारे संसार में मीडियोक्रिटी के लिए कोई जगह नहीं रही है। बट yes, and one more thing you need to understand is every child is capable। हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता होती है और वो क्षमता स्कूल ही नर्चर करेगा, आपको बताएगा। जब आप ओपन हाउस में, अगले ओपन हाउस में आप आएंगे, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी चार्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, एटीट्यूड एंड वैल्यू चार्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको खुद ही मालूम चला जाएगा कि मेरा बच्चा कौन से फील्ड में प्रगति कर रहा है, इन विच फील्ड माई चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग। But again, as I said, for that, what is important? आप ही बताइए what is important? I want to hear from the parents. What is important for that? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा consistently progress करे, तो what is important? आपसे क्या मैं उम्मीद
उम्मीद रखूं तब? हम तो अपना पूरा करेंगे, आप लोगों से क्या उम्मीद रखूं बताइए? यस, एक ही उम्मीद है मेरी और एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपने बच्चे को प्लीज एब्सेंट मत करवाइए। Am I clear on that? Yes? Yes. Thank you so much. तो ये फाउंडेशन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा और हमारा नया सेशन जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मैंने बोल दिया है 4 पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। Clear to all of you? Next slide. लैंग्वेजेस में जैसे मैंने आपको बोला, फोनिक साउंड्स और लेटर्स, लिसन एंड आइडेंटिफाई, ब्लेंड वर्ड्स। किसी ने डिप्थॉन्ग्स तो किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं होगा बच्चों को आज तक, so they are going to learn diphthongs also over here because they should know what are diphthongs. So ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरे बच्चे आप लोगों को बाद में बताएंगे कि हमने क्या पढ़ा है। So this is regarding the foundation program for languages. उनकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए डेली हैंडराइटिंग प्रैक्टिस भी दिया जाएगा उन लोगों को, जो कि आपको करवाना है बच्चों से। हम एक जो भी बोलेंगे एक पैराग्राफ लिख लीजिए इन गुड हैंडराइटिंग। एंड लेट मी टेल यू पेरेंट्स, बच्चों से कर्सिव राइटिंग मत करवाइएगा। कर्सिव राइटिंग इज ऑब्सोलीट नाउ। बच्चों से प्लीज कर्सिव राइटिंग नहीं करवाएगा, इट इज ईएलटी स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो एक लाइन टीचर बताएगी बोर्ड पर लिख के, दिस इज द वे यू नीड टू राइट। ऑर्नामेंटल लेटर्स नहीं चाहिए हम लोग को, बिकॉज आज जो है you know that gradually the world is becoming digital. हम लोग जो हैं 21st century बच्चे को तैयार कर रहे हैं। हम लोग 18वीं सदी में नहीं अपने बच्चों को वापस खींच रहे हैं, हम अपने बच्चों को आगे आगे लेकर जा रहे हैं। तो हैंड राइटिंग में जैसे मैंने बोला, इट इज ELT स्टाइल ऑफ राइटिंग। वी शुड टीच देम राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड फॉर द चिल्ड्रन। तो बच्चे समझ जाएंगे हमको इस तरह से लिखना है। Is it clear to all of you? So this is the foundation program for languages, and I'll be sending you these slides. मैं आपको ये स्लाइड भी भेजूंगी ताकि आपको मालूम चले कि गुड हैंड राइटिंग है, पिक्चर कॉम्पोजिशन है। जब बच्चे करने लगेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये डॉक्यूमेंट साइंस और मैथ्स में जैसे मैंने बोला है, वी हैव टू डेवलप दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमको क्या करना है? वी नीड, एक्सक्यूज मी पेरेंट्स जो आगे बैठे हैं, आई कैन रिक्वेस्ट यू नॉट टू टॉक। हम ये बच्चों से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी एक क्लास चल रही है आप लोगों के साथ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम टेकिंग अ क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। So you are my students today. What are you? Parents, what are you today for me? So how a student has to be in the class? बताइए। The student has to be? Yes. अगर हम ये करेंगे तो यही वैल्यू अपने बच्चों को भी देंगे। So I request all of you, please be attentive. Don't talk to each other. That's my request to all of you. अगला है हमारा How to develop scientific temperament in the children. ये बहुत important है, क्योंकि मैंने बोला our ultimate aim स्कूल में क्या है? To make our children independent learners. Don't you believe that? Believe करते हो ना इस बात को कि बच्चों को जब तक आप independent learners नहीं बनाएंगे, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो साइंस में हम उनके scientific skills को डेवलप करेंगे। हमने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है ये। अब जब आप जाएंगे ओपन हाउस के लिए, अपने बच्चों का OA शीट जरूर देखिएगा। साइंस टीचर, आई होप यू हैव गॉट OA शीट विद ऑल ऑफ यू। अपने बच्चों का OA शीट भी देखिएगा, जहाँ की बच्चों ने प्रैक्टिस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। So we will be doing this, observe, analyze, research, infer, conclude. With children will be observing themselves, और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू टीचर्स will only guide them. टीचर्स उनको सिर्फ फैसिलिटेट करेगी, ठीक है ना? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, जब आपका छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, आप क्या उसको पकड़ के चलाते हैं? नहीं ना, आप थोड़ा सा उसको हेल्प करते हैं और धीरे धीरे वो क्या करता है? चलने लगता है। तो सेम इज द प्रोसेस विद लर्निंग आल्सो। वी फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस फॉर द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन स्टार्ट इम्प्रूविंग। So this is regarding your science. Parents at the back and mothers at the back. Teachers, Vinta, can I request you, that lady is जो concentrate नहीं करे, यहाँ वहाँ देखे बात कर रही है वो, उनको थोड़ा बोलिए कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। आज मैं आपको स्टूडेंट्स की तरह से मैं ट्रीट कर रही हूँ, तो इसी तरह से क्लास में भी होता है। आज मेरी क्लास बहुत बड़ी है, तो मेरे को कुछ पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा उनका जो है आई कॉन्टैक्ट मेरी तरफ रहे। आई वॉन्ट योर आई कॉन्टैक्ट टू बी टुवर्ड्स मी। Please listen to me and your eye contact should be towards me. Okay, this is a class. वो माताएं पीछे बैठकर बात कर रही है, सोफे पे 2 माताएं बैठकर बात कर रही हैं वहाँ पर। थोड़ा सा आप शांत होकर यहाँ पर देखिए, शांत होकर आप यहाँ पर देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
तो ये रहा आपका for science, maths and EVS, you will be developing their scientific temperament. Next is for your research aptitude. कैसे उनका रिसर्च एप्टीट्यूड हम डेवलप करेंगे आप देख लीजिए. श्वेता, यस, रिसर्च एप्टीट्यूड स्लाइड. देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, दिस ईयर वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द रीडिंग स्किल्स ऑफ द चिल्ड्रन, और वो एक मार्क्ड एक्टिविटी रहेगी. तो जब भी हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, टीचर्स उनको बोलेंगे, हम उस बच्चों को फ्राइडे या सैटरडे बोल देंगे कि दिस न्यू चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट और आपको इतना हमको रीड कर कर डाल देना है. व्हाई रीडिंग? बिकॉज रीडिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंशन. तो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी कारण से देखिए पुराने जमाने में हम लोग के पास कोई, मेरे तो टाइम पे मुझे जितना याद है टीवी वगैरह नहीं था मेरे टाइम पे, तो वी यूज्ड टू रीड अ लॉट. स्टोरी बुक्स पढ़ना, मतलब पढ़ के जो है जब स्टोरी बुक्स पढ़ते थे कहानी की किताब, तो हम विजुअलाइज करते थे. एक राजा था, उसकी एक रानी थी. कुछ देख तो नहीं रहे हम लोग, तो हम क्या विजुअलाइज करते थे, हाँ भाई राजा राजा की पोशाक पहने हुए, रानी रानी की पोशाक पहने हुए. फिर हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते थे. द किंग वाज अ वेरी वेरी हैंडसम किंग, वाज वेरी स्ट्रांग, ही वोर नाइस ऑर्नामेंटल क्लोथ्स, क्योंकि हमने उसको विजुअलाइज कर लिया है, बिकॉज वी वर रीडिंग अ लॉट. अब आज के जमाने में रीडिंग स्किल्स बिल्कुल भी इट इज डाइड कंप्लीटली. तो हम इस चीज को रिवाइव कर रहे हैं और बच्चों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हर लेसन जैसे भी स्टार्ट करेंगे, टीचर्स बोलेंगे और बच्चे को उस लेसन को रीड और रिकॉर्ड करके टीचर्स को वापस डालना है, और जो चीज को नहीं समझेगा उसको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट डे टीचर्स के साथ उस लेसन का ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा. पढ़ेगा तो बहुत कुछ समझ लेगा. तो इस चीज को आप लोग बहुत ज्यादा टेक इट वेरी वेरी, टेक इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. अगर हमने बोला है तो आपका हेल्प क्या रहेगा? You don't have to read the lesson for the children, but you have to see कि क्या होमवर्क आ रहा है व्हाट्सएप में, हमने क्या बोला हुआ है, और आप थोड़ा इन्वॉल्व रहिए बस बच्चों के साथ कि वो काम उस चीज को कर. Clear to all of you? So reading, as I said, it's going to be very important. Reading and recording, brainstorming रहेगा. बच्चों के साथ स्टार्टर एक्टिविटीज रहेंगी ताकि वो उनका दिमाग थोड़ा खुले. स्टार्टर एक्टिविटीज विल बी द फॉर्म ऑफ क्विज दिया है आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पर कोई सही गलत नहीं. मैंने बोला क्या राजा अच्छा था या बुरा था, कारण क्या है? तो बच्चा कुछ भी बोल सकता है, बुरा है अच्छा है कुछ भी बोल सकता है, पर वो क्या कर रहा है? he or she is using her thought process. ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं कि बच्चों को इस साल, ताकि अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करें, एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग इन देयर ओन वर्ड्स. Emphasis will be more on that. थीम बिल्डिंग रहेगा, कॉन्सेप्ट मैप्स रहेंगे, फ्लो चार्ट्स रहेंगे. या आप धीरे धीरे आप नोटबुक पे बच्चों के देखते चले जाएंगे. बस आप थोड़ा नोटबुक को मॉनिटर करिए कि क्या हो रहा है. और इस बार जो है करेक्शन वर्क भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बच्चों के लिए होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको करेक्शन वर्क कंप्लीट होता हुआ मिल जाएगा आप लोगों को. सो यू जस्ट हैव टू मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग इन द नोटबुक्स फॉर द चिल्ड्रन. एंड प्लीज बी अटैच्ड विद योर टीचर्स. आपको कुछ प्रॉब्लम है, पहले टीचर्स को पर्सनल टीचर्स को मैसेज करिए, बिकॉज टीचर्स नो व्हाट इज एकेडमिक्स. ऑफिस में आपने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को बुला के बोल दिया, नहीं तो आपने किसी और को बोल दिया, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे. आई विल नॉट एंटरटेन दैट. आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू कॉल अप द टीचर एंड यू टॉक टू हर. टीचर आपकी बात नहीं समझ रही हैं, आप मुझे बताइए, बिकॉज दैट इज द राइट वे, क्योंकि हम एकेडमिक्स को समझते हैं, व्हाट इज एकेडमिक्स. We people know. So there should be a mutual coordination between the teachers and the parents and the principal. I hope I'm very clear on that also. Clear to all of you? So this will be there too. अब देखिए एक और बहुत बड़ी चीज जो बच्चों को हम करवाने जा रहे हैं इस साल से, जो भी हम टॉपिक लेंगे, at the end of the lesson they'll have to do some innovation, creativity. उनके creativity को improve करने के लिए they have to do some innovation, और उसको किसी भी global link, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से उस चीज को उनको लिंक करनी रहेगी. समथिंग वेरी न्यू, मतलब जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, इट विल बी इनोवेशन विद क्रॉस करिकुलर एंड ग्लोबल लिंक, जो कि हर सैटरडे बच्चा करेगा. एंड यू विल सी दैट. आप जब भी ओपन हाउस में आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज आवर टीचर्स आर गेटिंग, they are already trained. I will not say that they are getting trained, they are already trained and they are doing it also. You just monitor and you be engaged with your children. This is regarding the foundation program. Yes, Shweta?
हमने फाउंडेशन को डॉक्यूमेंट कर दिया है, ये आपके पास आ जाएगा। दिस विल कम टू ऑल द पेरेंट्स, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाउंडेशन। क्लियर पेरेंट्स? सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा और इसी के हिसाब से आपका फाउंडेशन प्रोग्राम चलेगा। ऑल द फॉर्मेट्स विल शो यू, गो ये फॉर्मेट्स हैं बच्चों के लिए। तो ये रहा हम लोगों का फाउंडेशन प्रोग्राम। नाउ वी कम टू आवर एकेडमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2023-24। ये तो फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ और अप्रैल 10 से जो बच्चों की पढ़ाई होगी और क्या सिस्टम है उस चीज को आप समझ लीजिए। होमवर्क का एक शेड्यूल है, सारे सब्जेक्ट्स डेली नहीं जाएंगे, बट डेफिनेटली किसी ना किसी सब्जेक्ट का रीडिंग जाएगा, मैथ्स भी डेली जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होमवर्क शेड्यूल भी आप लोगों के पास आ जाएगा एंड टीचर्स आर गोइंग टू फॉलो दिस होमवर्क शेड्यूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये होमवर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चों का होमवर्क जाया करेगा। नेक्स्ट, और एक्सक्यूज मी, गो बैक। सैटरडे का शेड्यूल अलग रहेगा, सैटरडे का शेड्यूल अलग रहेगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि सैटरडे का शेड्यूल बच्चों के लिए क्या है। नेक्स्ट, हमारी एकेडमिक पॉलिसी, हर सैटरडे को टाइम टेबल स्पेशल रहेगा। मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल कुछ अलग, सैटरडे का टाइम टेबल कुछ अलग, क्योंकि सैटरडे के दिन हम बच्चों को ज़्यादा क्लब एक्टिविटीज, हाउस एक्टिविटीज, जैसे भी हमने बोला अगले साल से हम ताइक्वांडो कंपल्सरी है बच्चे के लिए, गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस मार्शल आर्ट ताइक्वांडो फॉर द चिल्ड्रन। स्केटिंग भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। स्केटिंग इज नॉट कंपल्सरी, जो चाहते हैं वो अपने बच्चों को स्केटिंग के लिए भेज सकते हैं, तो आपको उसके लिए जो भी मटेरियल खरीदना है आपके ऊपर है। बट ताइक्वांडो जैसे मैंने बोला इट इज कंपल्सरी बिकॉज चिल्ड्रन शुड नो वन मार्शल आर्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्विमिंग क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, 25 मार्च से बच्चों के लिए स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और हर सैटरडे टाइम टेबल तो स्पेशल रहेगा, और हर सैटरडे जो हम पढ़ा चुके हैं 2 सब्जेक्ट का सरप्राइज टेस्ट रहेगा। नेम इज सरप्राइज टेस्ट। तो आपके पास कोई टाइम टेबल उसका नहीं आएगा, ना ही आपको मालूम रहेगा, ना ही आपके बच्चों को मालूम रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। वो किसके लिए? बिकॉज वी वांट द चिल्ड्रन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। मंडे टू फ्राइडे हम जो पढ़ा चुके हैं, क्या बच्चे ने उसको कंसिस्टेंटली लर्न किया है? और वो सिर्फ 15 मार्क का रहेगा, इट्स नॉट अ वेरी बिग टेस्ट। 15 मार्क का विद द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई हमने जो पढ़ा दिया है आपने समझा कि नहीं समझा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रहेगा आपका सैटरडे को। फिर हर फ्राइडे को, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे हमने जो पढ़ा दिया बच्चे को, मेरा हम लोग का एम्फेसिस क्या है, हमारा जो एकेडमिक टीम है उनका एम्फेसिस ये है कि हमारे बच्चे खुद कुछ लिखना सीखें। टीचर्स ने क्वेश्चन आंसर लिखवा के रट लिया, उससे कुछ नहीं बच्चा सीखने वाला है। तो हम हर फ्राइडे को बच्चों को वैक वर्कशीट भेजेंगे। वैक का फुल फॉर्म है विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, क्योंकि बच्चा 3 तरीके से लर्न करता है, देखकर, सुनकर और करकर। तो हमारा वर्कशीट भी उसी मॉडल का रहेगा। वी विल बी सेंडिंग वैक वर्कशीट्स टू द चिल्ड्रन एवरी फ्राइडे। जैसे अभी बोलते 4 या 5 सब्जेक्ट, छोटे क्लास में 4 सब्जेक्ट, बड़े क्लास में 5 सब्जेक्ट, इतना ही 5 या 6 सब्जेक्ट। तो फ्राइडे को 2 सब्जेक्ट कर दिया, सैटरडे को 2 सब्जेक्ट कर दिया, संडे को 2 सब्जेक्ट कर दिया, तो बच्चे के ऊपर कोई बर्डन भी नहीं। वैसे वीकली वर्कशीट जाएगा और उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे पेरेंट्स? कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6। और वो क्वेश्चन भी कैसे रहेंगे? उनकी कॉग्निटिव लेवल को इंप्रूव करने के लिए। इट विल स्टार्ट विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर उनका बेसिक पहले रिमेम्बरिंग, उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन रहेगा, थोड़ा सा एनालिसिस रहेगा, थोड़ा सा इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन रहेगा एंड लास्ट रहेगा क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन। तो ऐसे 6 क्वेश्चन बच्चों को दिए जाएंगे जो कि बच्चे अपने आप से करेंगे। आप ना किसी ट्यूशन टीचर से, ना ही आप बच्चों के वर्कशीट में कुछ लिखेंगे। और एक टाइम रहेगा 5 PM to 7 PM, जहाँ पर बच्चे टीचर्स को कॉल कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। Is it clear to all of you? This is our pattern. फिर आपके पहले टर्म में 2 पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे। कितने पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे? पहले टर्म में कितने पीरियोडिक टेस्ट रहेंगे पेरेंट्स? 2 पीरियोडिक टेस्ट, फिर एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। पीरियोडिक टेस्ट आप लोगों का 30-30 मार्क का रहेगा, 9 के लिए 30 मार्क का पीरियोडिक टेस्ट रहेगा, और हाफ ईयरली जो है ग्रेड 1 to 5 के लिए 50 मार्क का रहेगा, और 6 to 9 के लिए 80 मार्क्स का रहेगा। अब 30 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट, और हम बीच में बच्चों के ओरल इन्वेंटरीज करवाते रहेंगे। पीरियोडिक टेस्ट के टाइम पर हम
बीच बीच में बच्चों के ओरल एलिमेंट्रीज करवाएंगे, क्योंकि सीबीएसई का भी यही नियम है। सीबीएसई बोलता है यू कैन हैव असेसमेंट ओके एट द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग, assessment in the middle of the learning and assessment at the end of the learning, जो कि बच्चों के oral inventories के थ्रू होगा। कभी speaking होगा, तो कभी OS sheet होगा, तो कभी enrichment sheet होगा। और बच्चों के लिए oral inventories के लिए हम आपको कोई डेट नहीं देंगे, क्योंकि वो बीच में होता रहेगा। इसीलिए बोला अगर बच्चा एब्सेंट हो गया तो हमको मत आकर बोले कि मेरे बच्चे को इसमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, because it is exactly what the CBSE says. Because they believe in enrichment. बोलते हैं आप written assessment करिए, साथ में बच्चों के लिए enrichment activities भी करिए। तो पर हम बच्चों को बेशक बोल देंगे कि बेटा कल हम लोग we are going to do an enrichment worksheet, so come prepared. Tomorrow we are going to do a case study from this particular theme of the lesson, so come prepared. पर आपके पास कोई schedule नहीं रहेगा, there is no fixed schedule for oral elementaries. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपसे, और मैंने ये चीज आपकी पॉलिसी में भी लिखी हुई है। There is no fixed schedule for assessment at the beginning of the learning. समझ रहे ना, beginning मतलब चैप्टर शुरू करते मैंने कुछ क्विज करवा लिया बच्चों से, उसके प्रीवियस नॉलेज से, वो मेरा असेसमेंट हो गया, उसके लिए मैंने 5 मार्क रखे। उसके बाद मैंने बीच में बच्चों से KWL चार्ट करवा लिया, क्योंकि मैं लेसन इतना पढ़ा चुका हूँ, कितना समझा, मैंने KWL करवा लिया। लेसन खत्म होते होते मैंने बच्चे से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करवा लिया। तो ये इसके लिए कोई डेट नहीं है, पर ये सारी मार्क्ड एक्टिविटीज हैं। ये इसलिए है ताकि बच्चा अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करता है। तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपके बच्चे को आपने एब्सेंट करवाया, प्लीज डोंट ब्लेम द स्कूल कि मेरे बच्चे को ओरल एलिमेंट्रीज के लिए मार्क्स नहीं मिले। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू मेक योर चाइल्ड पंक्चुअल। आपको जो पीरियोडिक टेस्ट का टाइम टेबल है 30 मार्क्स का, उसके लिए आपको टाइम टेबल मिला करेगा। हाँ, आज ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, कल ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, और पीरियोडिक टेस्ट के पहले हम बच्चे को लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कशीट भी देंगे, जो कि हम स्कूल में ही बच्चों से करवाएंगे। We will make them do it in the school. जैसे मैंने 4 क्वेश्चन स्कूल में करवा लिए, उसके बाद सेम टाइप के क्वेश्चन मैं बच्चे को होमवर्क के लिए उसी वर्कशीट से दिया करूँगी। तो वो क्या करना है, बच्चे को खुद से भी करना है, और तो कुछ भी डाउट होगा, he has to call up the teacher कि I have got this doubt, not that ट्यूशन टीचर और आपने बच्चे के लिख दिया। He has to call up the teacher and he has to write, he or she has to write of his homework. Clear? तो ये हम लोग का एकेडमिक पॉलिसी है। वो बात तो प्रीवियस टाइम खत्म नहीं हुआ बेटा। तो मैंने बता दिया आपको 4 पीरियोडिक टेस्ट हुए इस साल। पहले टर्म में 2 पीरियोडिक टेस्ट, फिर हाफ ईयरली आपका, उसके बाद अक्टूबर से फरवरी तक अगेन 2 पीरियोडिक टेस्ट और आपका एक फाइनल एग्जामिनेशन विद ओरल एलिमेंट्रीज। और आपका जो पीरियोडिक टेस्ट और टर्म एंड एग्जामिनेशन है, उस टाइम पे जो ओरल एलिमेंट्रीज होंगी उसकी डेट शीट भी आपको मिला करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पीरियोडिक टेस्ट के टाइम पे नहीं मिलेगी आपको ओरल एलिमेंट्रीज की डेट शीट, मेक इट वेरी क्लियर टू द पेरेंट्स। पर जो हमारा हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के टाइम पर भी हमारा ओरल इन्वेंटरीज रहेगा, जिसका कि आपको डेट शीट मिलेगा। उसके बाद एनुअल के लिए भी हमारा ओरल इन्वेंटरीज रहेगा, जिसका कि आपको डेट शीट मिलेगा, बट पीरियोडिक टेस्ट का नहीं। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, ओके। और हर सैटरडे को सरप्राइज टेस्ट है, तो बच्चे को एब्सेंट तो करवाना नामुमकिन। क्लियर? नेक्स्ट तो आपको दे दिया उनकी एकेडमिक पॉलिसी इस तरह से है। और देखिए एजुकेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हेल्प देम डेवलप फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप लोग भी चाहते ना कि आपके बच्चे कम से कम 90+ तो लेकर आए बोर्ड एग्जामिनेशंस में? यस और नो? यस और नो? यस। So for that education beyond classroom is very important, जहाँ पर कि हम बच्चे को धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अचानक सेंटेंस को मालूम चला है मेरे को तो एनालिटिकल पैसेज आने वाला है, मेरे को तो केस स्टडी आने वाला है, और हमने यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। हम तो सिर्फ रट्टू तोते की तरह से पीछे के क्वेश्चन आंसर रटवा के उसको 100 आउट ऑफ 100 दिलवा रहे थे, और जैसे ही 10th का बोर्ड एग्जाम आया बच्चा पजल्ड। तो हम यहाँ पर जो एजुकेशन बियॉन्ड एक्टिविटीज है ये भी करवाया करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ओनली। जैसे मैंने बोला ओएल शीट, एनरिचमेंट शीट, सेल्फ रिफ्लेक्शंस, ये सारे एनालिटिकल पैसेजेस, केस स्टडीज सब होता रहेगा बच्चों के लिए, बीच बीच में होता रहेगा, ताकि बच्चा भी प्रिपेयर्ड रहे हम सब चीजों के लिए। तो प्लीज वंस अगेन एवरी टाइम आई एम्फसाइज पंक्चुअलिटी। और अगले साल से हर महीने जो बच्चा पंक्चुअल रहेगा क्लास में, जिसकी 100% अटेंडेंस रहेगी हर मंथ, और भी कुछ पैरामीटर्स है, 100% अटेंडेंस, कर्सी टुवर्ड्स टीचर्स, लैंग्वेज, द कोड ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल विल बी इंग्लिश। आप भी बच्चे को थोड़ा एनकरेज करिए दैट इवन इन होम टॉक स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश।
Not that कि हम लोग Britishers बन गए और we are influenced by the Western culture. Not that. We are not influenced by the Western culture. We are very traditional and cultured Indians itself. But there is nothing wrong in learning the global language because that only is going to help the child in later part of his life. क्योंकि आपका मकसद ये तो नहीं कि मेरा बच्चा पढ़कर सिर्फ बरेली के अंदर रह जाए, नहीं ना, हम क्या चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में मेरा बच्चा जाए वहाँ पे सक्सेसफुल हो. And I believe in that only. I want to make my children global citizens. And I really would want that after 12, my children should go to the best of universities to learn. For that, this global language is very, very important. The confidence in this global language, the way to speak in this global language, the way to write in this global language, ये बहुत ज़्यादा important है. It is not that we have become slave to Britishers once again. Please don't take it that way. We are all open-minded. We love our language. That's why we speak in Hindi inside our house. Yes or no? हिंदी में बात करिए घर पर. पर जब बच्चा स्कूल में आए, and I have already told all my teachers also that I will not encourage any teacher talking in Hindi inside the campus. So we have made it a rule that in the campus, as much as possible, teachers will converse with the children only in English. And so you must tell your children also that you encourage them. Few sentences you can always speak. Okay? This is it. तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट. क्लास में जनरली मोड इस तरह से रहेगा, स्टार्टर एक्टिविटी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आप देखते चले जाएंगे नोटबुक में एक अलग पैटर्न से हमने क्या किया है. वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया. द रीजन फॉर स्टैंडर्डाइजिंग इज See, basically तो we don't want the teachers to go in between. हम नहीं चाहते कि कोई टीचर बीच में चली जाए. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है अगर कोई टीचर बीच में चली जाए. बट इट इज एन इमरजेंसी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, टीचर को रिजाइन करके जाना ही पड़ गया. वी कांट हेल्प इट. तो इसके लिए हमने क्या कर दिया है, हमने अपनी टीचिंग पैटर्न को स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि जो भी आए उसको इसी तरीके से पढ़ाना है. तो बच्चों को दिक्कत ही नहीं है. बच्चा जानता है कि मैं इसी तरह से पढ़ रहा हूँ. कोई भी टीचर आ गई, स्टार्टर एक्टिविटी होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, टूल ऑफ लर्निंग होगा, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होंगे, लर्निंग आउटकम होगा. डेली इसी पैटर्न से पढ़ रहा है बच्चा. उसके बाद क्या है, बच्चे को मालूम है कि सैटरडे को मेरे को क्रॉस करिकुलर लिंक विद इनोवेशन एंड ग्लोबल कनेक्ट करना ही है. एंड टीचर्स आल्सो नो. सो वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद द चिल्ड्रन. यस, नेक्स्ट. मैंने बोल दिया आप लोगों को हमारी वर्कशीट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही जाया करेगी with 6 cognitive levels: remembering, understanding, apply, analyze and evaluate and create. इस मॉडल से हम लोग की वर्कशीट बच्चों के लिए जाया करेगी and teachers are praying towards it now. And your children will also, हो सकता है शुरू में एक आध महीने बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि अभी जितना मैंने देखा है, जितना मैंने यहाँ पर आके देखा है, बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रटते हैं, which is not going to help them. Maybe 1 month थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि उनको अपने आप से लिखना है, बट ग्रेजुअली जो है उनकी लैंग्वेज बेटर होती चली जाएगी. और टीचर्स भी क्या कर रहे हैं उनके लैंग्वेज को बेटर करने के लिए, अगर कोई नया शब्द आ गया है, ओके, देयर इज अ न्यू वर्ड, आई विल एक्सप्लेन दैट इन हिंदी क्योंकि आप ज़्यादा समझ पाएंगे उसको. अगर कोई नया शब्द आया, मैंने बोला नया शब्द आया सुंदर, तो बोलेंगे सुंदर, तो उनको शायद उनके लिए नया होगा, तो क्या करेंगे हम सुंदर के पर्यायवाची, खूबसूरत, और क्या हो सकता है, आकर्षण जो भी है. तो if I say beautiful, beautiful के synonyms क्या होंगे? Pretty, good looking, isn't it stupendous? तो बच्चों को जो भी नया वर्ड आएगा टीचर्स क्या करेंगे उसके synonyms इंग्लिश में और पर्यायवाची हिंदी में, ताकि बच्चे they can use a range of vocabulary. वैसे तो लर्न करेंगे ना हाउ टू यूज अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी, तो ये भी हम लोग करेंगे ताकि बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए और वो अपने इस वर्कशीट्स को अच्छी तरह से कर. नेक्स्ट, इट्स ओके. ये सारे बच्चों के लिए इस साल अवार्ड्स हैं. वर्ड विज़ार्ड, क्योंकि हम बच्चों को हर दिन 2 नए शब्द या 1 नया शब्द दिया करेंगे, उसको उन्हें यूज करना है. तो बच्चों को ये सारे जो है अवार्ड हम एनुअल डे पे दिया करेंगे. वर्ड विज़ार्ड, एविड रीडर, बुक भी होगा. जहाँ कर रही हो श्वेता, एक बोलते हैं उससे पहले आप चेंज कर देंगे. माय रिपोर्ट बुक ऑफ रीडिंग, ये सारी लाइब्रेरी की एक्टिविटीज आपकी. तो जीके आइकन रहेगा. ये हम जीके के बुक्स हमने नहीं लगाए हैं इस साल बच्चों के लिए. नो जीके बुक. और जीके का कोई फॉर्मल एग्जाम भी नहीं है. डेली असेंबली में 6 क्वेश्चंस प्रेजेंट करेंगे और हर महीने कुछ स्पेशल क्विज होगा बच्चों के लिए. जैसे हमारा अप्रैल में स्टीम क्विज है,
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैथ, इसके ऊपर हम लोग का स्टीम क्विज रहेगा। बच्चों को क्वेश्चंस जाएंगे उसके विद आंसर, जो कि बच्चों को लर्न करना है, उसमें से फिर बच्चों का क्विज रहेगा। अगस्त में हम फ्रीडम क्विज, हर महीने जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, जैसे जून में आपका एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हर मंथ बच्चे के लिए कुछ स्पेशल क्विज रहेगा। जैसे आपका जनवरी में बुक वीक है तो हमारा बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर होगा, और उसके लिए बच्चों को क्वेश्चंस देंगे, बच्चों को लर्न करना है, और उसमें से हम जी के आइकन निकालेंगे। और जिस बच्चे को मैक्सिमम जी का आइकन मिलता है पूरे साल में, ही बिकम्स अ जी के आइकन ऑफ द स्कूल। तो लेट देम बी रेगुलर, जी के आइकन है, फिर आपका स्पेल भी होगा। इस तरह से काफी प्रोग्राम्स बच्चों को रहेंगे। और जैसे मैंने बोला, हर महीने स्टार स्टूडेंट अवार्ड तो रहेगा ही रहेगा, वो उनकी पंक्चुअलिटी। क्लियर? नेक्स्ट, और आपका भी ईआरपी, एक्सक्यूज मी पेरेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग अपना ईआरपी लेकर आ रहे हैं, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आज सारे पेरेंट्स के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट होगा। एवरी पेरेंट विल गेट अ लॉगिन आईडी एंड अ पासवर्ड। और ईआरपी में क्या होगा, एकेडमिक पार्ट में आपको पूरा बता दूं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो लेसन प्लान आपको मिल जाया करेगा, प्लस जो भी चैप्टर है उसके नोट्स भी आपको मिल जाया करेंगे। तो आपको वो सारा कुछ ईआरपी में मिलेगा, ताकि अगर वैसे तो बच्चे को एब्सेंट रहना मैंने मना कर दिया है, तो अगर आपको कुछ रेफर करना है तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसको रेफर भी कर सकते हैं। बाकी जो भी फीचर्स है ईआरपी के, ट्रांसपोर्टेशन के, बाकी जो भी फीचर्स हैं, हमारे ईआरपी का लाइक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, जब वो पेरेंट्स के लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेगा आपको बता देगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से हर पेरेंट अपना आज अपने जब टीचर के पास ओपन हाउस में जाएगा, अपना वो मोबाइल नंबर दीजिए जो कि एक्टिव है, क्योंकि ईआरपी में हमको वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो आपको वो मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जो आपका एक्टिव है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि कोई आप लोग कोई भी मोबाइल नंबर दे देते, कभी कभी वो एक्टिव है। जैसे मैंने बोला, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा बनाना, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला आने वाली दुनिया में। सो आवर एंडेवर इज टू सी दैट आवर चिल्ड्रन आर डेवलप्ड होलिस्टिकली, होलसम डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड टैलेंट। तो हमारी कोकरिकुलर पॉलिसी भी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, इट विल बी एवरीडे क्लास वाइज असेंबली, डेली क्लास वाइज असेंबली होगी, जहाँ पर कि बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद हर सैटरडे को क्लास वाइज स्पेशल असेंबली रहेगी, और ऑल्टरनेट सैटरडे को हम थिएटर फेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे पेरेंट्स? थिएटर फेस्ट। क्या करवाएंगे? आप बता सकते हैं व्हाट इज थिएटर फेस्ट? हमने एक स्टोरी चुनी है हर क्लास के लिए। जैसे भाई बोला, केजी वाले सिंड्रेला, ग्रेड 1 स्नो वाइट, ग्रेड 2 रैपुंज़ेल, ग्रेड 3 मालगुडी डेज। इस तरह से हमने स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है। उसके ऊपर बच्चे अपना थिएटर फेस्ट प्रेजेंट करेंगे। जैसे ग्रेड अपर क्लासेस को हम शेक्सपियर दे सकते हैं, जैसे हमने बोला जूलियस सीजर, हैमलेट। ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ स्पेशल, डेविड कॉपरफील्ड, हम कुछ ना कुछ बच्चों को स्टोरी देके बच्चे उसको एनैक्ट करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? एनैक्ट करेंगे उस चीज को, ताकि उनका दोबारा ये जो झिझक है खुल जाए। और हम चाहेंगे कि जो भी क्लास थिएटर फेस्ट प्रेजेंट कर रहा है, वो पेरेंट्स जरूर अपने बच्चों को देखने आए। It will be on Saturdays only. I don't want the parents to come for every assembly. Saturday की स्पेशल असेंबली पूरी क्लास स्टेज पर रहेगी, और थिएटर फेस्ट के लिए भी पूरी क्लास स्टेज पर रहेगी। So we want you to come for that. So I hope I'm very clear. Special assemblies on all Saturdays, but alternate Saturdays we will be having theater fest for our children. ये हो गया आपका। और इस साल देखिए जो हम दे रहे हैं, म्यूजिक है, डांस है, ताइक्वांडो है, स्विमिंग है, थिएटर्स है, और स्केटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, योगा है। ये सारी चीजें बच्चों के लिए रहेंगी। प्लस नेक्स्ट, अब मैंने आपको बता दिया है, वो तो आपका जिसपे हमारा थिएटर्स होगा। और हमारे मेजर प्रोग्राम जो रहेंगे, हर वेडनेसडे और सैटरडे को बच्चों की हाउस एक्टिविटीज होंगी, और सैटरडे को बच्चों की क्लब एक्टिविटीज भी होंगी। और हमारे मेजर इवेंट्स ऑफ द ईयर, उसका भी आपको एक लिस्ट मेरे ख्याल से हमने दिया है, सारे टीचर्स आपको दिखा देंगे। हमारे कम से कम 17 इवेंट्स हैं इस साल, 17 इवेंट्स हैं हम लोग के, सब मिला के हम लोग के स्पेशल असेंबलीज है, फिर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि बच्चों को उसका सिंबॉलिज्म मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला नवरात्रि सेलिब्रेशन, बच्चों को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला
Okay, there's a festival, tomato festival in Spain. So what is that tomato festival? बच्चों को मालूम होना चाहिए. तो हम कुछ national और international events यहाँ पर celebrate करेंगे, so the children know what is that feeling. तो ये सारे हम लोग के major events हैं, investiture ceremony है, summer camp है, और investiture ceremony will be doing it in a democratic way. और बड़े क्लास के बच्चे, we are planning. I'm not very sure because it's the first time, but we are planning for a mock UN session for our students of 7th to 9th. मुन जिसको बोलते हैं हम लोग, it's a very common thing in all the premier schools. So we are going to conduct a mun for our children. वो बड़े बच्चे करेंगे, 7 to 9 के बच्चे मुन करेंगे, और जून जो हॉलीडेज का टाइम है, टीचर्स उनको ऑनलाइन क्लासेस लेकर उसके लिए ट्रेन करेंगी. हमारी कमिटी ऑलरेडी उसके लिए बन चुकी है उनके लिए. एंड द पर्सन हु विल हेल्प अस, बच्चों के लिए भी सेशन लेगी वो पर्सन जो है, दुबई से बच्चों के लिए एक सेशन रहेगा उनका इन द मंथ ऑफ जून, कि कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है. तो जब हम ऑनलाइन सेशन करवाएंगे 7 to 9 के बच्चों के लिए इन द मंथ ऑफ जून, आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट. मैं दोबारा आप पेरेंट्स को बोल रही हूँ, मैं आपको डेट भी दे दूँगी, उसकी डेट भी आप लोगों को आ जाएगी. इट विल बी इन द मंथ ऑफ जून व्हेन वी विल हैव 1 or 2 सेशंस फ्रॉम आवर ऑनलाइन ट्रेनर फ्रॉम दुबई. She will tell the children what is mun, how to present it. Topic हम अभी से बच्चों को declare कर देंगे हम बच्चों के लिए. So this is again to improve on their not only communication skills but their theme-based learning, which will gradually help them for their board exams and future. तो ये सब रहेगा हम लोग का. और बच्चों का हाउस फेस्ट रहेगा in the month of July, जिसको कि हमने स्पेक्ट्रम नाम दिया है. And house fest में it will be a merger of literary activities and cultural activities. Things like declamation, जो आपने कभी देखा ही नहीं है, declamation रहेगा, impromptu रहेगा, okay, then rendezvous रहेंगे, जहाँ पर भी बच्चों के speaking skills improve होंगे. We will be having such competitions for our children, and I would request the parents, जुलाई के house fest में जरूर आइए ताकि आप अपने बच्चों के performance को देख सकें. Then you have your open house. साल में 6 open house रहेंगे. मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, साल में 6 open house रहेंगे. आपका PA1 का, PA2 का, हाफ ईयरली का, PA3, PA4 और एनुअल का. तो ये 6 ओपन हाउस में आपकी अटेंडेंस इज कंपल्सरी. नेक्स्ट, और देखिए इस साल हम बच्चों का, इस साल जैसे मैंने आप लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट मैगजीन दिखाया बच्चों का, अगले साल से हम अपने बच्चों की प्रिंटेड मैगजीन को ही तैयार करेंगे, जो कि आप हम लोग एनुअल डे पे उसको रिलीज करेंगे. मैंने नाम नहीं सोचा है, नाम सोचूंगी क्या करना है. तो बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग के स्कूल में तो हम करेंगे ही करेंगे, स्कूल में सारी चीजें करवाएंगे. बट सी, जैसे मैंने बोला, हमेशा इट इज वी आर वर्किंग एज पार्टनर्स विद ईच अदर, है ना. एक हाथ से तो कभी ताली बजी नहीं आज तक, ताली बजाना आपको दोनों हाथ चाहिए. तो आपका भी कोऑपरेशन उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट, और हमारा एक्सक्यूज मी, और ये ही नहीं, हम लोग जो है बच्चों का न्यूज़लेटर भी निकालेंगे. अप्रैल हर महीने के एंड में आप लोग के बच्चों का न्यूज़लेटर निकलेगा, जो कि हम आपको उसका लिंक भेज दिया करेंगे ताकि आप देख लें. क्लास वाइज हम न्यूज़लेटर निकालने वाले हैं, वो भी आप, सॉरी नॉट क्लास वाइज, तो जो भी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर हो रही हैं, और बच्चों का राइटर क्लास वाइज जाएगा उसमें, ताकि आप भी देख सकें कि हमारे स्कूल में क्या क्या हो रहा है. हमारा स्कूल मतलब हम लोग का सबका स्कूल, उसमें क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हुई, और आप लोगों से भी हम कुछ रिव्यूज दिया करेंगे कि आपको क्या लगा, व्हाट इज योर फीडबैक. फिर जैसे मैंने बोला, सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस नेशनल एंड पेट्रियोटिक इवेंट्स रहेगा ही रहेगा. नेक्स्ट, जनरल पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी, मैं एक बार पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए. चिल्ड्रन शुड बी रेगुलर टू स्कूल. They should not remain absent unless for medical reasons. One day absence in school will make it difficult for children to cope up with regular academics. Next, every academic and co-curricular activity provided by school have grades and marks attached to it. जो भी हम स्कूल में देते हैं, बच्चों का तो ग्रेड्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे. तो बच्चों को आप रेगुलर रखिए और बच्चों को वो करने के लिए भी आप एनकरेज करेंगे. नेक्स्ट, once your child remains absent for medical reason, it should be validated by a leave. For example, बच्चों को बुखार है, कान में दर्द है ना, कुछ भी, मतलब बहुत ऐसा रीजन है कि बच्चा स्कूल नहीं आ सकता, एक दिन के लिए नहीं आ सकता है, तब भी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज डाल देना है, नहीं तो हम उसको नहीं मानेंगे और बच्चे को हम क्लास में भी नहीं आने देंगे. नेक्स्ट, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बता रही हूँ आपको, यू हैव टू फॉलो द रूल्स. आप भी सीखिए रूल्स को फॉलो करना, आप भी सीखिए. और मैंने यूपी में एक ट्रेंड देखा है कि
आप लोग बहुत जो है अपने बच्चों को आर्मी भेजने का, आर्मी मतलब ऐसी चीज़ें भेजने का बहुत आप लोगों में पैशन रहता है। तो जब बच्चा ये रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं सीखेगा तो कैसे एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनेगा, कैसे एक अच्छा एयरफोर्स ऑफिसर बनेगा, कैसे एक अच्छा नेवल ऑफिसर बनेगा। और किसी कॉर्पोरेट में भी अगर उसको काम करना है, किसी अच्छे MNC में भी अगर उसको काम करना है, जब तक वो रेगुलर, जब तक वो कुछ पॉलिसीज को नहीं रेस्पेक्ट करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ। और सबसे पहले उसके लिए पेरेंट्स को सीखना है। आप ना बहुत लाइटली मत लीजिए इन सब चीजों को। स्कूल एक ऐसा चीज है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता लिखाता नहीं है, बच्चों को पूरा एक इंसान बनाता है। इट मेक्स द चाइल्ड what sort of a human being? A value-based human being with thoughtful ideas who can respect the rules and regulations. तो उसके लिए पहले हम सीखेंगे इन सब चीजों को। Clear to all of you? तो ये मेरा अगला है, मैंने आपको बोला अगर आपका बच्चा एक दिन भी एब्सेंट रहता है तो आपको उसका रीजन देना है कि मेरा बच्चा इसके लिए नहीं आ रहा। और किसमें डालेंगे आप? WhatsApp ग्रुप में डालेंगे। फिर मत बोलिएगा कि हमने बच्चों को जो है मतलब हम बच्चों को अगले दिन आने ही नहीं देंगे। अगर बच्चा आएगा तो हम भेज देंगे उसको ऑफिस कि रीजन नहीं आया बेटा तुम्हारा। तो डोंट फील बैड अबाउट इट, डोंट थिंक कि हम बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी सिखाना है ना। हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि कल कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग बनकर निकले, छोटी छोटी चीजों से वो नर्वस नहीं हो जाए। क्योंकि आज तो जैसे मैंने बोला, मैंने घर में उसको बहुत लाड़ प्यार दिया हुआ है, पर कल जब वो कहीं नौकरी करने के लिए जाएगा वो लाड़ प्यार नहीं मिलने वाला उसको उस कंपनी की, नहीं तो उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, नहीं तो नौकरी खत्म उसकी। अगर आप आपके बिजनेस में भी अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो बिजनेस की भी कुछ पॉलिसीज होती है, राइट? तभी आपका बिजनेस आपके बच्चे के थ्रू आगे बढ़ेगा। वो लेजी है, वो लेथार्जिक है, वो कुछ नहीं समझता है, क्या कर लेगा फिर ऐसा बच्चा? नहीं ना। और आप किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी चीजें सिखाएं? स्कूल से एक्सपेक्ट करते ना, इसीलिए आपका बच्चा स्कूल में आता है। तो ये सारी चीजें आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले साल से एक बात बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर बच्चा एक दिन के लिए एब्सेंट, आपका लीव नोट WhatsApp ग्रुप में। अगर 2-3 दिन के लिए एब्सेंट होता है तो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दैट। नहीं लेकर आएगा या आएगी बच्चा क्लास में नहीं आ पाएगा। प्लीज पेरेंट्स, टीचर्स प्लीज टेल द पेरेंट्स, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। नहीं तो हम जैसे बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर किसी भी क्लासरूम में 30 बच्चों से ज्यादा नहीं होगा, 30 स्टूडेंट्स। इट इज नॉट लाइक द अदर स्कूल्स ऑफ बरेली वेयर वी हैव 60 to 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। वी डोंट बिलीव इन दैट। वी आर अ प्रीमियर स्कूल, वी वांट टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। मगर 30 बच्चों से ज्यादा हमारे क्लास में होगा भी नहीं। तो जो मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं, मैं इतना पर्सनल अटेंशन अपने बच्चों को टीचर्स के थ्रू दिलवा रही हूँ, तो आपका भी कुछ दायित्व है। क्लियर पेरेंट्स? यस और नो? थैंक यू सो मच। फिर देखिए फ्रॉम एकेडमी, मैंने बोल दिया आपको 2023-24 से ओरल इन्वेंटरीज विल बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर असेसमेंट। ओरल इन्वेंटरीज बीच में होती रहेंगी और उसके लिए मार्क्स भी होंगे, तो बच्चों को आप एब्सेंट मत कर पाइएगा। और उसका कोई डेट शीट नहीं है, ओरल इन्वेंटरीज का कोई डेट शीट नहीं है। नेक्स्ट वीकली, जैसे मैंने बोला, वीकली वर्कशीट्स होंगे, लॉन्ग रिविजन वर्कशीट्स होंगे, वो सब आप देखिए, बच्चों को खुद करने दीजिए, आप कुछ मत करिए, टीचर्स का हेल्प लेके बच्चे उस चीज को करते हैं। नेक्स्ट, नो ट्यूशंस। मैं दोबारा बोलती हूँ, नो ट्यूशंस फॉर योर चिल्ड्रन, ओके? और जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजिए। देखिए, मंडे ट्यूसडे रेगुलर यूनिफॉर्म में आएगा, वेडनेसडे उसको हाउस यूनिफॉर्म पहनना है, थर्सडे फ्राइडे रेगुलर यूनिफॉर्म में आएगा, सैटरडे दोबारा उसको हाउस यूनिफॉर्म पहनना है। तो इस साल आप लोग को हाउस यूनिफॉर्म भी खरीद लेना है बच्चों के लिए। Everyone has to buy house uniform. KG के टीचर्स बता देंगे, KG का भी है। We don't have house, we have clubs for them, strawberry club and mango club. According to that, you have to buy the club uniform for the children. Next is everything is given over here. Teachers will tell you. और बच्चों के लिए हमारी काउंसलर भी है। Niti, you did not introduce yourself. Please come forward. We have a school counselor also. तो बच्चों के लिए रेगुलर काउंसलिंग सेशंस रहेंगे थ्रू आवर काउंसलर, who will be एग्जाम से पहले काउंसलिंग, बीच में नहीं रहेंगे। तो I will ask Niti to introduce herself. Good morning, dear parents. I am really very happy to introduce myself. I am Nidhi Sharma. I am a student counselor.
psychology, and I have already done M.Ed in education. I have choose clinical psychology so that I can resolve the students' problem better. Dear parents, I would like to tell you that I will be taking sessions before and after periodic exams. I think periodic exams, yani periodic tests, and before final exams. So thank you and welcome to our institute, to our Jaipurian family. Please come and meet me if you have any problem. Not problem. We can say if you have any concern about the student, I will be very happy if you come with their concerns. Thank you. So we have a student counselor also in place. Can you give a clap to her, please? तो आपके साथ हमारा स्टूडेंट काउंसलर भी आ गया है. बच्चों की कोई भी लाइक द वे शी सेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ कंसर्न्स हैं बच्चों के लिए, तो हर एग्जाम से पहले तो वो बच्चों के लिए स्ट्रेस बस्टर सेशंस करवाएं ताकि बच्चे टेंशन फ्री रहें. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट. And I would appreciate if you can just reciprocate by making your children punctual. I don't expect anything more from you. Punctual, regular, proper uniform, okay? And they should also be regular in completing their work that we give them. And let me tell you one more thing. Projects तो हम homework देंगे ही नहीं बच्चों को. There will be no project which will be given as homework. We'll be making them do it in the school. Rest, as I told you, I've already told you everything. So yes, Shweta was the next slide. Assembly policy, that's okay, we've already shown them. So we have got fixed policies for everything. With this parents, I end my workshop and I'm glad that the number is good. Now please attend your open house and understand what we have for your children, how your children have done this academic year, and I promise all of you, next academic year you will see a sea change in your children. You will see a sea change in your children, but for that let us work together. You will see that your students are getting groomed in the best possible way. And as I told you, every child is unique. Every child is unique. Don't compare them. और उनके talent के accordingly they will be getting nurtured. And you are free to voice out your concerns because it is not your child anymore. He or she is our child. हमने already उनकी responsibility को ले लिया. Again, bringing it your notice कि 15th onwards we are starting with our foundation program. कौन सी तारीख से foundation start हो रहा है? 15 तारीख से. 8 बजे बच्चों को आ जाना है, 1:30 बजे खत्म हो रहा है ना. अभी तो आपका देखिए, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से. फाउंडेशन प्रोग्राम इज फ्रॉम March 15 to April 7. उस टाइम बच्चों का टाइमिंग रहेगा 8 AM to 1:30 AM. 10th April से टाइमिंग विल बी 8 AM to 2:10 AM. क्योंकि सब कुछ आप स्कूल से करवा के भेजना चाहते हैं. We don't want to give any burden to the parents. Is it clear to all of you? So I want every child to be present from 15. और प्लीज अगर आपने अभी तक मतलब फाउंडेशन का मटेरियल पहले खरीद लीजिए. उसमें ऑलरेडी आपके लेटर में लिखा हुआ है. आज आपके ओपन हाउस के बाद जाके आज नहीं तो कल अपने फाउंडेशन मटेरियल को खरीद लीजिएगा ताकि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए. और नोटबुक को नीटली कवर करिएगा विद ब्राउन पेपर और लेबल लगा के लिखिए फाउंडेशन नोटबुक. क्या लिखिएगा? फाउंडेशन नोटबुक फॉर इंग्लिश, फाउंडेशन नोटबुक फॉर हिंदी, फाउंडेशन नोटबुक फॉर EVS, फाउंडेशन नोटबुक फॉर मैथ, फाउंडेशन नोटबुक फॉर साइंस, फाउंडेशन नोटबुक फॉर SST. और इस साल 1 to 4 पे सिर्फ EVS है. Grade 1 to 4 is only having EVS. We have not introduced science and social science separately. 5वीं से ही हमने साइंस और सोशल साइंस को सेपरेट किया है. एक्चुअली CBSE के रूल के अकॉर्डिंग 1 to 5 EVS ही होना चाहिए. 6 ऑनवर्ड वो साइंस और सोशल साइंस में बाइफरकेट होता है. पर मैंने 5th से इसलिए शुरू किया कि कम से कम बच्चों को थोड़ा बहुत मतलब लाइट ही है. जो उनका सोशल साइंस का किताब है इट इज नॉट वेरी हैवी और साइंस की किताब भी बहुत हैवी नहीं है. तो कम से कम लेट देम स्टार्ट गेटिंग द फील फ्रॉम ग्रेड 5th ऑनवर्ड्स. और 1 to 4 के बच्चे पेंसिल से लिखेंगे. मैं भी वो भी क्लियर कर दूं. 1 to 4 के बच्चे सिर्फ पेंसिल से लिखेंगे तभी उनकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी. एंड 5th ऑनवर्ड्स ही बच्चे पेन यूज करेंगे. और बच्चे 2 पेन से नहीं लिखेंगे. यहाँ पर ये भी मैं देख रही हूँ क्वेश्चन किसी और कलर से और आंसर किसी और कलर से. नो, यू आर गोइंग टू यूज ओनली 1 पेन. यू टेल योर चिल्ड्रन आल्सो सिर्फ ब्लू कलर पेन ही बच्चे यूज करेंगे. एंड प्लीज बाय जेल पेन्स, डोंट बाय बॉल पेन फॉर द चिल्ड्रन. बच्चे बॉल पेन से नहीं लिखेंगे, हैंडराइटिंग खराब होती है बच्चों की. दे विल ओनली यूज
जेल पेन्स. Clear to all of you? 1 to 4 क्या यूज करेगा बच्चा? 5 onwards? कौन सा पेन? जेल पेन, कौन सा कलर? ब्लू कलर. Okay. Thank you so much, parents. You're all welcome. Thank you.